Well, welcome back after the break. वापस आने के लिए शुक्रिया, करम, मेहरबानी. जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि even though this is the first week of Ramadan, हम बात करने वाले हैं straight चांद रात के बारे में. Because if there's one thing you really crave in the first week of Ramadan, जब रोजे लग रहे होते हैं, थकन हो जाती है को, यार ईद कब आएगी? So we're going to fast track you to that feeling क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद एक ऐसी मेहमान है who I'm really excited to have in studio. Not only because she is one of the founding members of Mosaic Mississauga, but also because उन्होंने GTA के काफ़ी दायरों में अपनी छाप छोड़ी भी है, whether it is in the fields of art, activism or in her role as being Mrs. Arshad Mahmood. और उसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे. It is my honor and pleasure to welcome into our studios. She likes for me to call her Asma Appa, but we'll introduce her formally, Mrs. Asma Mahmood. Thank you so much for joining us. Thank you so much for having me. बहुत अरसे बाद किसी ने मुझे इतना heavy duty किस्म का welcome दिया है. जीते रहो. बनता है भाई, जीते रहो. Thank you very much. See, रमज़ान के पहले हफ्ते में मैंने दुआ ले ली है. I am doing really well for myself. So I think, you know what, I think the heavy duty introduction banta hai. I think it's been a really monumental year for you. I've got to congratulate you for a bunch of things. Let me just tell you, Canadian Immigrant Magazine ke jo top 75 immigrants of the year mein aap shamil thi. Of course, congratulations on that. Thank and you of course, so much. Arshad sir was nominated, or actually no, was awarded for being an outstanding volunteer by the Mississauga Arts Council. He was actually. And aapka jo love child, the labor of love, Mosaic Mississauga, has gone on to become the biggest South Asian festival in the GTA. It is, mashallah. It's, as a matter of fact, it's the largest free South Asian festival of North America now. Arre wah. So that's excellent. That's very exciting. ये 7वां साल है हमारा जी जी. और पिछले साल ही हम largest festival हो चुके थे, लेकिन इस साल unfortunately no With some other competition. yes, exactly. With तो उसकी वजह से भी it is the largest festival. Personally मेरा ये opinion है कि अच्छी बात होती है जितने festivals हैं उससे पता चलता है कि community की strength कितनी है और मेरे लिए वो festival अभी भी बहुत मुझे अजीज है और I hope कि वो उसको पूरा ना बंद करें बल्कि साथ साथ ये चलते रहना चाहिए. हेल्थी कंपटीशन हेल्थी एक्टिविटीज़ को जन्म देता है. मोज़ेक एक तरह से वो फेस्टिवल है जिसने जो नॉर्मल फेस्टिवल्स जिस तरह के होते थे या जिस तरह वेडिंग हॉल्स में लोग फंक्शंस करते हैं, कल्चरल इवेंट्स वगैरह, इसने उस होल को तोड़ के एक खुली जगह के ऊपर मेन स्ट्रीम स्पेस के अंदर हमने ये फेस्टिवल करने की कोशिश की और एफर्ट ये थी कि इस फेस्टिवल में सिर्फ साउथ एशियंस नहीं आए बल्कि दूसरे कल्चर्स के लोग भी आए. तो उसके अंदर हम कितने सक्सेसफुल हुए हैं उसका अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि इस फेस्टिवल के अंदर तकरीबन 40% अटेंडेंस नॉन साउथ एशियंस की होती है. wow. Which is a very big. No, I think one of the most shocking things जो मैंने देखे थे, जो मैं photographs देख रहा था पिछले सालों के जो Mosaic festivals हो चुके हैं, and I think one of the scariest photographs I'd seen was the fact कि stage पे से photograph लिया गया था और लग रहा था जैसे जो हज का जो हुजूम होता है, it was like जहाँ तक नजर जाती वहाँ तक लोग खड़े हुए stage के सामने. How many people, कभी कुछ अंदाज़ा हुआ है कि what kind of crowd the festival attracts? हाँ, हमें सिटी एस्टिमेट्स देती है, सिटी ऑफ मिसिसागा, बिकॉज हमें पुलिस वगैरह हमें चाहिए होती है तो वो उस एस्टिमेट के हिसाब से हमें उनके बिल भरने पड़ते हैं. तो ये इन्होंने हमें पिछले साल एस्टिमेट दिया था कि वी हैड अटेंडेंस ऑफ ओवर 60,000 पीपल, विच इज़ वेरी वेरी आई वुड से एक्सलेंट रिजल्ट. Absolutely. क्योंकि साउथ एशियन कम्युनिटी को बाहर निकालना मुफ्त के अंदर बड़ा मुश्किल काम है. बिल्कुल. टिकट के साथ भी मुश्किल है लेकिन मुफ्त भी काफ़ी मुश्किल है. सही बात. तो लेकिन ये था कि पिछले साल जो हेडलाइनर्स थे वो दे वर वेरी अकम्प्लिश्ड. साइन ज़हूर वाज देयर. इस साल the master is coming. Shafkat Emanat Ali Khan is headlining, so everybody will get an opportunity to see him for the first time in North America, free on the big stage. Wow. Shafkat Emanat Ali is right now the hottest Bollywood singer. आइफा के अंदर उनका performances पिछले 2 साल से consecutive वो आइफा में best song के लिए nominate होते जा रहे हैं. And तो उन जैसा आर्टिस्ट आ रहा है. स्टीरियो नेशन जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट बैंड है. किसी ज़माने में स्टीरियो नेशन का बहुत धूम थी, बहुत नाम था. अभी भी उनके बाज़ नंबर्स हैं जो आजकल वो जिन पे काम कर रहे हैं, टैज़, बहुत अच्छे नंबर्स हैं और लोगों को बहुत पसंद आएंगे. उसके अलावा हमारे पास बॉस्टन से रेड बारात बैंड आ रहा है. right. जिन लोगों ने अपने अम्मा अब्बा की शादी अटेंड नहीं की थी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनकी शादी में कैसा बैंड था वो सुन लें. बिल्कुल. और apparently Obama loves that band, President Obama. So it's a very famous White House selection. There you go. Sunny Jane and Red Barat. उसके अलावा एक
बहुत ज़बरदस्त गतका टीम आ रही है हमारे पास यूके से. अभी गटका क्या होता है? I know हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में, but I think the broader audience might need a little bit of introduction. What is Gatka? अच्छा, गतका is actually Punjabi martial arts. Wow. So it's not only just martial arts, it's also a lot of dance in it, Right. lots of active movement. जी. So because Sikh is a martial tribe, so उनकी ये एक तरह से tradition है उनका कि वो उसके अंदर ऐसे acts करते हैं जिसके अंदर उनका skill पता चलता है, तलवारबाजी है, नेज़ाबाजी है, and all these things. इसी तरह जिस तरह सरहद के अंदर जो dances होते हैं आदमियों के तलवार के साथ वो dance करते हैं, वहाँ पे भी गतका होता है. तो this one is a Punjabi style of गतका. It's amazing. very elegant and it's beautifully done. और ये बहुत बड़ी एक टीम है जो कि यूके से आ रही है और ये आएंगे और परफॉर्म करेंगे संडे को और फ्राइडे को. Wow. 2 performances हैं. And honestly जो ख़वातीन हज़रात, अगर if you ever want to see, you know, मर्दों की ताकत और नज़ाकत का जो combination होता है, I think it's the strength and elegance that displayed together is mind blowing. I think I've seen other forms of martial arts dance combinations. I've seen capoeira, जो कि Brazilian, basically same story. Exactly. It's martial arts meets dance. So Yeah. I'm really excited to see that performance as well. अब ये तो हुआ इस साल की बातें हुई. I want to just take a step back. I think this interview is very special for me क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने मस्त मन शुरू किया था, Arshad sir had come on as one of my first guests and he had spoken about Mosaic at that point. So उनके नज़रिए से we had found out the history of how Mosaic came to happen. I want to know from your perspective as well because I think औरतों में एक ऐसी खासियत होती है जो हर फाइन डिटेल को याद कर लेती हैं वो, क्योंकि मर्दों को we're oblivious to certain things sometimes. So I want a finer perspective on how exactly the festival came to happen. Festival happened because Mississauga में ऐसा कोई इवेंट नहीं था और ऐसा इवेंट करने की बहुत ना सिर्फ ज़रूरत थी बिकॉज हमारे बच्चे मिसिसागा को मिज़री सागा कहते थे. तो हमने फिर उनको कहा कि देखो जब चीज़ें खुद चेंज तो नहीं हो सकती तो हमें खुद करनी पड़ेंगी. तो फिर हमने ये फेस्टिवल का आइडिया लेके हम आगे बढ़े. आइडिया ये था कि हमारे बच्चे ज़रा सा हमारा कल्चर जान जाएंगे. उल्टा ये हुआ कि हमें अपने बच्चों का भी कल्चर पता चल गया क्योंकि हमने रॉक द कॉलोसियम साथ में शुरू कर दिया. अब मोज़ेक जो है सिर्फ साउथ एशियन नहीं है. मोज़ेक में रॉक द कॉलोसियम एक बहुत बड़ा एलिमेंट है और वो इंडी म्यूज़िक है. इंडिपेंडेंट म्यूज़िक बैंड्स जो हमारे गोरे बच्चे बैंड्स बनाते हैं. सही बात है. We can call them गोरे बच्चे. You know, because हमारे बच्चे इसी तरह के लोगों से मिलते हैं ना. गोरे बच्चों के साथ वो गोरे बच्चों का म्यूजिक भी सुनते हैं, वो उनका म्यूजिक है. तो अब वो जो म्यूजिक है उसके लिए हमने रॉक द कॉलोसियम शुरू कर दिया. तो वहाँ पे गोरे बच्चे वहाँ बैठ जाते थे, गोरे बच्चों के अम्मी अबू मोज़ेक के मेन स्टेज पे आके बैठ जाते थे. मोज़ेक के मेन स्टेज पे is where you have the big acts. Big acts, South Asian acts हैं सारे. Absolutely. तो ये इस तरीके से हम गोरी ऑडियंस को भी खींच के ले आए अपने अंदर. तो आइडिया यही था कि किसी तरह हम अपनी एक तो सिटी को बेहतर कर सकें और दूसरा प्रोएक्टिव तरीके से ताकि उसमें सारों को साथ लेके चलें. Exactly. And I think we can't be isolated as a community, right? I think कि जब आगे बढ़ना होता है while living in a country as diverse as Canada, आपने पूरी कौम को लेके साथ चलना है. Exactly. और जब तक आप अपने बच्चों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, जब तक उनका स्किल, उनका आर्ट आप अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे, वो आपका आर्ट नहीं अप्रिशिएट करेंगे. तो हम ये करते थे कि उनका टाइम ख़त्म होता था तो वो सारे भागे भागे मेन स्टेज की तरफ आ जाते थे. उस वक्त हमारा देसी एक्ट चल रहा होता था. शामक दावर डांस फ्यूजन जो है वो हमारा सैटरडे नाइट को हेडलाइनर होता है. एवरीबडी लव्स इट. कैपेसिटी क्राउड देखना तो उस टाइम पे देखा हमारा. तो जो जिस तरह की हमें अटेंडेंस चाहिए थी पहले साल हमें नहीं मिली क्योंकि पहले साल हम वी वर लर्निंग. सेकेंड ईयर इट गॉट बेटर. थर्ड ईयर वाज लाइक हमने कहा हम तो बिलीव भी नहीं कर सकते ये क्या हुआ है. सो देन यू नो उसके बाद से इट्स बीन टेकिंग अप. इस दफ़ा नो फ्रिल्स इज आवर स्पॉन्सर्स एंड दे हैव बीन वेरी वेरी जनरस एंड काइंड. तो उसकी वजह से हमने इस दफ़ा फिर आर्टिस्ट एक्ट्स भी उसके मुताबिक बड़े किए क्योंकि फ्री फेस्टिवल है. हम सारे वॉलंटियर्स हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है. उससे ये अंदाज़ा होता है कम्युनिटी को कि जी क्योंकि ये वॉलंटियर्स हैं तो हम भी इनके साथ हेल्प करें. सो हमारे सारे लोग हमें ज़्यादा कोऑपरेशन देते हैं. हमें ग्रांट्स जो हम लिखते हैं जिसमें भी बहुत मेहनत होती है वो अलहदा एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है. और वो इसलिए भी मिलता है क्योंकि एक तो क्रेडिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की जो कि नॉन फॉर प्रॉफिट ग्रुप है CCAI. और दूसरी चीज़ ये कि ये फेस्टिवल में इतनी हम लोग मेहनत करते हैं पूरे साल कि इट हैज़ now become a very high standard to maintain.
इस दफ़ा हम एक और चीज़ में जिसमें बहुत खुश हैं वो ये कि अब नई टीम आ गई है. अब जो जूनियर्स होते थे जिन्होंने हमारे साथ शुरू किया था सीखना काम, अब वो इस काबिल हो गए हैं कि अब वो आगे आ गए हैं. अब फॉर एग्जांपल हमारी जो फेस्टिवल वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर थी दानिया फातिमा हाशमी, शी हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम हर पोजीशन and a new festival volunteer coordinator has come up. इसी तरह फिर हमारे पास काफ़ी सारी जो एरियाज़ हैं उसमें नए लोग आ गए हैं. तो आइडिया यही है, इस दफ़ा फेस्टिवल डायरेक्टर नहीं हैं अनु विट्टल, आई एम नॉट द फेस्टिवल डायरेक्टर एनी मोर. तो आइडिया ये है कि अब इस पूरी फेस्टिवल को हम एक नई टीम को ट्रांसफ़र करके आगे बढ़ाएं. तो उससे ये होता है कि एक तो फेस्टिवल में फ्रेश आइडियाज़ आते हैं और दूसरा फिर उसके अंदर एक नया. इस दफ़ा हमने एक और बहुत अच्छी चीज़ की है फेस्टिवल में. इस दफ़ा हमने सोचा सारे फेस्टिवल को टाई इन करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि सारा प्रोग्राम एक बंदे के हवाले कर दिया जाए. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, let me introduce you to that person. He's going to be the festival MC. So I'm sure festival is going to be fantastic this year. Well, let's hope for that. I think वही जो हुजूम देख के जो reaction हुआ है, it's breaking news. I think नीचे वो जो flashing lights लगा देनी चाहिए. I'm going to be the festival MC. उसके बारे में we have to talk a little bit more. पर इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा break. Because I think I need to take a deep breath क्योंकि now that we've given them the breaking news, उनको भी absorb करने देना चाहिए थोड़ा time. So हम लेते हैं एक छोटा सा break. नाज़रीन आप कहीं ना जाइएगा क्योंकि we have tons more to talk about. हम अभी गए और अभी वापस आए. से राह दिखेरा झे वो जोत जगाए राजा मेरा दीन धर्म रांझा है कुल खुदाई ना भेज रमाए मुझ
खेड़ियां दे नाल वे नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल वे नहीं